Good morning, students. I am your geology teacher, and in this class, we will study about classification of phylum Protozoa. As we have studied in our last class, general characters of phylum Protozoa. So, now in this class, we will start with classification of phylum Protozoa. Here you can see that as earlier I defined, protozoans are microscopic unicellular organisms. They are either solitary or colonial. These organisms does not have tissue and organs and reproduce with both methods, asexually and sexually, and bears one or more nuclei. So, Leeuwenhoek in 1671 identified that protozoans are single cellular organisms and named protozoa given by Goldfuss in 1818. Here you can see that this phylum is divided into two subphyla on the basis of locomotory organs, but the most accepted classification of protozoa is given by B.M. Hoienberg, and he divided the phylum Protozoa into four subphyla. And here you can see that phylum Protozoa is divided into subphylums that are four in number. These subphylums are mainly classified on the basis of organelles used for locomotion in protozoans. So, the first subphylum is subphylum Sarcomastigophora. Second is Sporozoa. Third is Nidospora, and last is Coeliophora. You can see that subphylum Sarcomastigophora is further divided into three superclasses. First is Mastigophora, second is Opinellata, third is Sarcodina. And subphylum Sporozoa have three classes: Teleosporia, Toxoplasmia, Haplosporia. Next subphylum Nidospora have two classes. First is Myxosporidia and second is Microsporidia. And last subphylum Coeliophora is divided into only one class, that is Ciliata. Here you can see that superclass Mastigophora is further divided into two subclasses. First is Phytomastigophora, second is Zoomastigophora. And superclass Sarcodina is divided into mainly three classes, but as in your book, two classes are mentioned there. One is Rhizopodia and second is Actinopodia. You can also said like this, Rhizopoda and Actinopoda. इसलिए आपको सिर्फ ये दोनों क्लासेस ही पढ़नी है. पायरोफेजमिडा इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. चलिए अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सब फाइलम था, दैट इज सार्कोमेस्टिगोफोरा. हेयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर फ्लैजिला, सूडोपोडिया और बोथ. And we divided the first subphylum Sarcomastigophora into three superclasses. तो फर्स्ट सुपर क्लास है Mastigophora, which bears flagellates
and animals of this superclass bears flagella as a locomotory organ, that is whip-like flagella or maybe pseudopodia bearing animals, but main here one or two flagella are present in case of Mastigophora. अगली जो सुपर क्लास है दैट इज ओपेनिलाटा। यहाँ पे क्या होता है, जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की इज कवर्ड बाय सीलिया लाइक फ्लैजिला दैट आर नॉट लॉन्ग बट स्मॉल स्ट्रक्चर्स, सीलिया लाइक। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, सीलिया लाइक कहा है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैजिला है उसका साइज छोटा होता है, हेयर लाइक, सीलिया लाइक। यहाँ पे इस क्लास की जो सुपर क्लास है इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एज ए कोमेंसल और पैरासाइट रहते हैं इन द गट ऑफ ए न्यूरन्स। ए न्यूरन्स यहाँ पे आप वो बोल सकते हो, वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होती। ए मीन्स विदाउट और न्यूरन्स का मतलब है टेललेस, टेललेस कि जिनके अंदर टेल्स प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो ए न्यूरन्स की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट आप देखोगे थर्ड सुपर क्लास है सार्कोडीना। सार्कोडीना के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सूडोपोडिया जो है शॉर्ट, ब्लंट और डेलिकेट और लॉन्ग भी हो सकते हैं। जो अगली सुपर क्लास है दैट इज मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा के अंदर मेनली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं और इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि फ्लैजिला बियर करती हैं। इस सुपर क्लास को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक होती है फाइटोमेस्टिगोफोरा और एक होता है जूमेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा आपको पता है जो फ्लैजिला बियर करती हैं, फाइटो मतलब प्लांट, तो यहाँ पे क्या आएंगे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स विच बियर फ्लैजिला, और जू मतलब एनिमल, तो यहाँ पे क्या होगा एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स बियरिंग फ्लैजिला। एक बात और भी है इनमें, ये जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं और ये जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक होती हैं, क्योंकि फाइटो रिलेटेड टू प्लांट सो they can synthesize their food. In case here they cannot be synthesize their food. नेक्स्ट जो सुपर क्लास है सार्कोडीना, उसको हम डिवाइड करते हैं टू क्लासेस में, एक है राइजोपोडिया, एक है एक्टिनोपोडिया। जहाँ पे जो वर्ड है राइजो मीन्स रूट और एक्टिस वर्ड मीन्स रे, तो यहाँ पे जो फूट होगा यानी कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ रूट लाइक होगा, लॉन्ग टेंटेकल जैसा, और यहाँ पे जो फूट होगा वो रे लाइक होगा, पॉइंटेड, बट होंगे यहाँ पे मेनली सूडोपोडिया ही। बट सूडोपोडिया का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे रूट लाइक होगा और यहाँ पे जो है वो रे लाइक सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे जो सेकंड सब फाइलम है दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ से आप यहाँ पे समझ सकते हो, स्पोरो मतलब स्पोर और जोआ मतलब एनिमल, मीन्स यहाँ पे वो एनिमल्स आएंगे जो स्पोर बियर करती हैं, और इसके जो एनिमल्स हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनेली यहाँ पे एब्सेंट होती है, इसका मेन पॉइंट है, और इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई भी सुपर क्लास प्रेजेंट नहीं होती। फर्स्ट होती है टीलोस्पोरिया, सेकंड है टोक्सोप्लाज्मिया, थर्ड है हेप्लोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया के अंदर जो स्पोर्स हैं प्रेजेंट होते हैं बट सूडोपोडिया एब्सेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले ही कहा है कि लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज जो एब्सेंट हैं, तो इसकी जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर जो लोकोमोशन है वो टोटली एब्सेंट होगी। सेकंड जो है टोक्सोप्लाज्मिया। टोक्सोप्लाज्मिया के अंदर क्या है स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे भी सूडोपोडिया और फ्लैजिलम प्रेजेंट नहीं होता।
नेक्स्ट क्लास है हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो अमीबा लाइक होता है, इस वजह से इनको अमीबोइड स्पोर्स बोलते हैं। बट यहाँ पे जो है वो सूडोपोडिया प्रेजेंट है। दिस इज अ रेयर केस जो यहाँ पे सूडोपोडिया प्रेजेंट है। बाकी जो मेंबर्स हैं इस सब फाइलम के, दे डोंट बियर एनी लोकोमोटरी ऑर्गेनेली। तो ये जो क्लास है मेनली, इसको हम डिवाइड करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे कि आइदर स्पोर प्रेजेंट हैं या स्पोर एब्सेंट हैं। जो थर्ड सब फाइलम है दैट इज निडोस्पोरिया। निडो यहाँ पे जो है वो निटल वर्ड से रिलेटेड है, मीन्स यहाँ पे स्पोर्स जो होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, और स्पोरा मतलब शीड या स्पोर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्पोर्स हैं वो निडल लाइक होती हैं। दीज एनिमल्स बिलोंगिंग टू सब फाइलम्स आर टोटली पैरासिटिक। इसके जितने भी एनिमल्स हैं इस सब फाइलम के, वो सारे के सारे जो हैं वो पैरासाइट होते हैं। और लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज जो है यहाँ पे भी एब्सेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ड जो है वो स्पोरा आ रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म स्पोर बियर करते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पोर ही जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके जर्मिनेट कर जाते हैं, तो उसी के थ्रू जो है वो ग्रोथ होती है। तो इनको जो है वो मूव करने की ज़रूरत नहीं होती ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि मेनली स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं, वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। और जो एनिमल प्रोड्यूस होता है वो या तो ससाइल रहेगा, जो सिंगल है वो सरवाइव करेगा और वहीं पे रहेगा सोलिटरी, अटैच रहेगा किसी न किसी सबस्ट्रेटम के साथ में। इसको हम मेनली डिवाइड करते हैं टू क्लासेस में, एक है मिक्सोस्पोरिडिया और एक है माइक्रो। ये जो है मेनली स्पोर के साइज के बेसिस पे है कि मिक्सोस्पोरिडिया के अंदर क्या होता है, स्पोर का जो साइज है वो लार्ज होता है, और माइक्रो में क्या होता है, स्पोर का साइज जो है वो स्मॉल होता है। यहाँ पे जो है 2 और 3 वॉल्स प्रेजेंट होती है अराउंड स्पोर, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिंगल वॉल प्रेजेंट होती है अराउंड स्पोर। जो लास्ट सब फाइलम है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा जो है मतलब सीलिया बियरिंग एनिमल्स आते हैं मेनली यहाँ पे, कि जो सीलिया है वो एज ए लोकोमोटरी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है इनके अंदर। और इसकी एक सिंगल क्लास है जो कि सीलियाटा है। सीलियाटा के अंदर जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सरफेस पे सीलिया जो है प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फ्रेश वाटर और मे बी मेराइन और मे बी पैरासाइट जो हैं ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, मेराइन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एज ए पैरासाइट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और लोकोमोटरी ऑर्गेनेली कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और एक मेन पॉइंट है कि सीलिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, कि यहाँ पे जो सीलिया है वो कंप्लीट बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, या तो ड्यूरिंग वूल और ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, या तो उस एनिमल की बॉडी पे उसकी कंप्लीट लाइफ के दौरान प्रेजेंट रहेंगे, या फिर क्या है उसकी लाइफ साइकिल के कुछ पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि मान लो जब वो अडल्ट में चेंज हुआ, तो जब वो अडल्ट बन रहा है तो सीलिया प्रेजेंट है, और लार्वल स्टेज पे हो सकता है कि सीलिया प्रेजेंट नहीं है। तो लाइफ साइकिल के किसी भी पार्ट में जो है वो सीलिया प्रेजेंट है। इसको जो है हम डिवाइड करते हैं 4 सब क्लासेस में। किसके बेसिस पे, कि जो सीलिया हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, प्रेजेंट हैं या प्रेजेंट नहीं हैं, उसके बेसिस पे। जो इसकी फर्स्ट सब क्लास है दैट इज होलोट्राइकिया। होलो का मतलब है कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी बॉडी के ऊपर, कंप्लीट बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे। जो पेरीट्राइकिया है, पेरीट्राइकिया के अंदर क्या होता है कि बॉडी के ऊपर सीलिया सिर्फ अडल्ट स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं। सक्टोरिया जो है, सक्टोरिया में आप देखोगे जो सीलिया है वो एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होते,
बट यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। और वो जो टेंटिकल्स हैं वो सेक्टोरियल होते हैं। सेक्टोरियल का मतलब है जो शकिंग में भी हेल्प करते हैं। और जो लास्ट सब क्लास है दैट इज स्पायरोट्रैकिया। जो स्पायरोट्रैकिया है वहाँ पे जो सीलिया है वो प्रेजेंट तो होती हैं बट रिड्यूस्ड इन स्ट्रक्चर। सीलिया जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता, वो रिड्यूस्ड होती हैं। मीन्स कि आप ये बोल सकते हो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। वो कुछ बॉडी प्लेसेस पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे वो ग्रो कर रही हैं और कहीं पे नहीं कर रही। तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो में जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको हमने 4 सब फाइलम में डिवाइड किया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो 4 सब फाइलम में हमने डिवाइड किया है वो हमने क्या है ऑर्गेनेली फॉर लोकोमोशन उसके बेसिस पे डिवाइड किया है। तो जो सार्कोमेस्टिगोफोरा था यहाँ पे सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, इन तीनों में से कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेली प्रेजेंट हो सकती है। स्पोरोजोआ जो है उसके अंदर लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गेनेली है वो एब्सेंट थी, हालांकि इसकी लास्ट क्लास के अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट थे। नीडोस्पोरा है, यहाँ पे भी जो है वो स्पोर्स प्रेजेंट थे, लोकोमोटरी ऑर्गेनेली एब्सेंट थी। और जो स्पोर्स है नीडो से नीडल लाइक थे। सीलियोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेली थी वो सीलिया थी। यहाँ पे जो है सीलिएटा क्लास की 4 सब क्लासेस नहीं है इस पिक्चर के अंदर, बट जो लास्ट स्लाइड है वहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, तो आप लास्ट स्लाइड में जाके इसको देख सकते हो। और जो मेनली बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देंगे उनके अगर क्वेश्चन आता है तो उनको हर सब फाइलम का, हर क्लास का या सुपर क्लास का आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे। और वो जो कैरेक्टर हैं वो मिनिमम 3 होने चाहिए नंबर में। मे बी अगर आप 2 भी लिख दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो आपको कम से कम 2 या 3 कैरेक्टर हर किसी के याद करने हैं। और अगर आप इसका फ्लो चार्ट बना के आते हो एग्ज़ाम के अंदर तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी के साथ में हम ये जो क्लास है वो एंड करते हैं। तो आपका ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे।